یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے. ہے کون وہ جھٹلائے جو اس شان کرم کو, ہے کون وہ جھٹلائے جو اس شان کرم کو. اللہ کی رحمت کی گھٹا سب کے لیے ہے, اللہ کی رحمت کی گھٹا سب کے لیے ہے. اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے, اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے. یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے, یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے. جو ذرے کو خورشید بنا دیتی ہے پل میں, جو ذرے کو خورشید بنا دیتی ہے پل میں, اس کی محبت کی عطا سب کے لیے ہے, اس کی محبت کی عطا سب کے لیے ہے. اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے, اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے. یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے. جو پھول کھلا دیتی ہے پتلی زمین میں, جو پھول کھلا دیتی ہے پتلی زمین میں, جو پھول کھلا دیتی ہے پتلی زمین میں. اس کی ساون کی وہ پھول کے گھٹا سب کے لیے ہے, ساون کی وہ پھول کے گھٹا سب کے لیے ہے. اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے, اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے. یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے, یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے. بنا لو تو لکھو, نعت لکھنے کا یہ سامان, بنا لو تو لکھو. مشکو عنبر سے دہن اپنا بسا لوں تو لکھو. چشم غوران بخش دی کام کاجل پالوں, چشم غوران بخش دی کام شاخ سدرا سے قلم پہلے بنا لوں تو لکھوں. شاخ سدرا سے قلم پہلے بنا لوں تو لکھوں. یا قلم کی جائے مجھے نو کے
ہے خالی اسے پالوں تو لکھوں سامائے شمس ہے خالی اسے پالوں تو لکھوں پہلے جبریل سے آداب کتابی سیکھو پہلے جبریل سے آداب کتابی سیکھو عظمت اس میں مبارک کی لکھا لو تو لکھوں عظمت اس میں مبارک کی لکھا لو تو لکھوں نعت لکھنے کی یہ حسرت تو ہے قدرت لیکن نعت لکھنے کی یہ حسرت تو ہے قدرت لیکن یہ لوازم نہیں ملتے انہیں پالوں تو لکھوں یہ لوازم نہیں ملتے انہیں پالوں تو لکھوں نعت لکھنے کا یہ سامان بنا لو تو لکھوں مشک و عنبر سے دہن اپنا بسا لو تو لکھوں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اسٹیج پر تشریف فرما آج کے مہمانان ہمارے طرف کینی سوسائٹی کے سیکریٹری محترم اقبال پنجابی صاحب ہمارے سابق طالب علم اور ہمارے دوسرے مہمان اعزازی محمد شارق انصاری صاحب اسکول کمیٹی کے چیئرمین نور پٹیل صاحب اسکول کمیٹی کے اراکین ڈاکٹر راشد سید صاحب شفیع حانی صاحب اویس مومن اور میرے تمام اساتذہ معلمین اور معلمات اور عزیز طلبہ السلام علیکم سب سے پہلے تو مکمل خاموشی رکھیں تاکہ جو بات ہو رہی ہے صرف میرے ذریعے نہیں بلکہ تمام مہمانان کے ذریعے اس بات کا کچھ مطلب نکل سکے اور کچھ ہم سیکھ کر یہاں سے جائیں. یہ صرف ایک انعام کی تقریب نہیں ہے جس میں کچھ بچوں کو
ट्रॉफियाँ दी जानी है, बल्कि यहाँ से कुछ हौसला भी मिलना चाहिए, कुछ सबक मिलना चाहिए और कोई ऐसी रोशनी मुस्तकबिल के लिए हमको दिखाई देनी चाहिए कि हम भी कुछ अच्छा करें। अगर तालीमी मैदान में, हम निसाबी सरगर्मियों में, तो मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह हमारी तरक्की भी होगी और कुछ इनामात हमको भी हासिल होंगे। ये तमाम तलबा जो यहाँ पर बैठे उन्हें ये सोचना चाहिए। हमारी दावत पर खास तौर से जो तलबा तशरीफ लाए हैं, 10वीं जमात जो पास करके गए हैं, मैं खास तौर से उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। अजीज तलबा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो स्कूल की सूरत हाल है, इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि हम अपने तलबा की अखलाकी सूरत हाल को दुरुस्त करें। जिस तरह से तलबा मौजूदा दौर के फितनों से ज्यादा हम आहंग हो रहे हैं, उसका मनफी असर रोजाना क्लासरूम में दिखाई दे रहा है। हम सिर्फ यहाँ पर इनामत तकसीम करने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि मुस्तकबिल के ताल्लुक से तलबा को आगाह करें कि कौन सी चीज़ें उनको फ़ायदा पहुँचा सकती हैं और कौन सी बातें उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बन सकती हैं। तमाम तलबा को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अभी बड़ी फिक्र की बात है कि तलबा असातिज़ा की नाफरमानियाँ जिस अंदाज में कर रहे हैं, और जब उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, जब वालिदैन को यहाँ पर बुलाकर उनसे बात की जाती है, तो वालिदैन ही हमसे ये कहते हैं कि सर मैं तो समझा चुकी हूँ या मैं समझा चुका हूँ, आप ही बोलो क्या करना है। ये बड़े दुख की बात है। माँ बाप जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह होते हैं। माँ के बारे में हमारे दीन में कहा गया कि वो बच्चे की पहली दरसगाह है। जो कुछ तरबियत उसको मिलनी है, जो कुछ उसका डेवलपमेंट होना है, वहीं से शुरू होता है, माँ की गोद से। और जिन वालिदात को हम यहाँ पर बुलाते हैं, उनमें से 95% हमसे ये कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी नहीं सुन रहा है। ये कितने दुख और अफसोस की बात है, बल्कि शर्म की बात है कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट जो है वो अपने वालिदैन की नहीं सुनता। तो ऐसे हालात में असातिज़ा क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो बच्चा अपने वालिदैन की नहीं सुनता है, तो उसके असातिज़ा की वो क्या सुनेगा? ये बड़े दुख की बात है। असातिज़ा में अगर नाउमीदी की कोई लहर पैदा हो रही है, तो इसके जिम्मेदार ये हालात हैं और इसके लिए जल्द से जल्द ऐसे हालात बदलना चाहिए। मैं वालिदैन जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उनसे भी पूरी पुरजोर अपील करूंगा कि वो अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चा हमारे पास में 5 से 6 घंटे रहता है स्कूल में, लेकिन ज्यादातर जो वक्त है उसका उसके घर पर गुजरता है। तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उनके बच्चे का वक्त कहाँ गुजरता है, स्कूल के अलावा वो कौन कौन सी सरगर्मियां अंजाम देता है। आज हालात इतने खराब है कि जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा अटेंटिव, बहुत ज्यादा चौकन्ने होने की जरूरत है, चौकस होने की जरूरत है। समाज में गली गली में बुराइयां फैली हुई है। आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपको, आपके बच्चे को कौन बहका के किस बुरी आदत में कब मुब्तला कर देगा। और इसकी फिक्र करना स्कूल से पहले, असातिज़ा से पहले उसके वालिदैन की जिम्मेदारी है, क्योंकि मुस्तकबिल में जो कुछ अंजाम किसी को अगर भुगतना है तो उसके वालिदैन को भुगतना है। हम नहीं चाहते कि कोई इसका अंजाम बुरा निकले, नतीजा बुरा साबित हो और नुकसान उठाना पड़े मुस्तकबिल में। इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद वालिदैन से और तमाम वालिदैन से ये चाहूंगा कि वो अपने बच्चों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें, उन्हें बुराइयों से दूर रखें,
آج کتنے بچے ہیں جن کے بیگ ٹٹولو تو ان میں سے کچھ نہ کچھ خراب چیزیں نکلتی ہیں, آبجیکشنیبل چیزیں نکلتی ہیں, بری لت والی چیزیں نکلتی ہیں. کوئی گٹکے کی عادت میں مبتلا ہے, کوئی اور اس سے بھی زیادہ خراب عادت میں مبتلا ہے. سماج میں درندے پھیلے ہوئے ہیں اور بچوں کو بہکا رہے ہیں, مسلسل لگے ہوئے ہیں. کوئی چاکلیٹ کی شکل میں ان کو نشہ بانٹ رہا ہے, کوئی اچھائی کی شکل میں ان کو برائی بیچ رہا ہے, اور بچے جو ہے وہ شوق سے ان چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں. اور ایک بڑی فوج ہے جو تیار ہو رہی ہے لت والی, ایڈکشن والی. تو کون ان کا ذمہ دار ہوگا؟ کیا اسکول ان کے پیچھے جا کر ان کی نگرانی کرے گا؟ یہ ناممکن ہے. آج ہماری یہ پہلی ذمہ داری ہونی چاہیے والدین کے طور پہ کہ ہم ان بچوں کو جو مستقبل کا ایک بہت بڑا سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں, ہم ان کی زیادہ سے زیادہ نگرانی کریں اور ان کی تربیت کے لیے کچھ عملی قدم اٹھائیں, صرف باتیں نہ کریں. اساتذہ کے اوپر یہ آ کر یہ نہ کہیں کہ ہم کیا کریں. جو بچے یہاں پر اسٹیج پر پہنچے ہیں, یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے استقبال کیا گیا محمد شارق انصاری. اس سے پہلے ہمارے ایک اور مہمان یہاں پر ایک بچہ اور بیٹھا ہے جو ہمارا طالب علم ہے سابق, یہ اویس مومن جو وکیل ہے. آج یہ نوجوان جو ہے اپنے اپنے فیلڈ میں سافٹ ویئر انجینئر کی شکل میں کام کر رہا ہے, کوئی وکیل کی صورت میں کافی خدمات انجام دے رہا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. ابھی یہاں پر 10ویں کلاس کا ایک بچہ میں آپ کو بتاؤں بیدر سے آیا ہے, خاص طور سے بیدر سے. اب یہ بیدر کیوں گیا ہے؟ 10ویں پاس کرنے کے بعد پچھلے سال ہمارے یہاں سے ڈسٹنکشن کی لسٹ میں ہے. کیوں گیا ہے؟ یہ بچہ حافظ قرآن ہے. میری بات کو یہ بچے غور سے سنیں, حافظ قرآن ہے یہ بچہ, اور اس بچے کے والد نے اس کی تربیت پر خاص طور سے توجہ دی کہ اس کو دین کی تعلیم ہی نہیں دی بلکہ قرآن سے اس کو شناخت کرایا اور حافظ قرآن بنایا. اس کے اوپر خاص محنت کی, اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے دین کی وہ تعلیم یعنی قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد, حفظ کرنے کے بعد اپنے اسکول میں ڈسٹنکشن والے طلبہ میں وہ تیسرا مقام اسکول میں اس نے حاصل کیا. الحمدللہ یہ بہت بڑے فخر کا مقام ہے. آپ اگر دین کی تربیت پر توجہ دیں گے تو اس کا نتیجہ ساتھ ساتھ میں اس کی جو اصلی تعلیم یعنی اسکول کی تعلیم ہے اس پر بھی دکھائی دے گا. یہ بات ثابت ہو چکی ہے. اس سے پہلے بھی کئی یہاں سے ایسے حفاظ اسکول سے نکلے ہیں کہ جنہوں نے بچوں کی تعلیم پر خاص طور سے جن کے والدین نے ان کی دینی تربیت کی تو ان کی اچھی تعلیم کا نتیجہ بہترین نکل کے آیا, اور وہ آج پروفیشنل لائف میں کامیاب ثابت ہو رہے ہیں, اور نیک انسان کے روپ میں, نیک انسان کی شکل میں ان کی اپنی ایک شناخت سماج میں بن چکی ہے. یہ جو بچہ جس کا میں نے ذکر کیا بیدر سے آیا ہے, یہ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن میں جو بچوں کی نیٹ کی تیاری کرواتا ہے. نیٹ کیا ہے آپ کو میں نے اس سے پہلے بتایا, ابھی موقع اس کا نہیں ہے. 12ویں جماعت کے امتحان پاس کرنے کے بعد جو طلبہ جو اسٹوڈنٹس میڈیکل فیلڈ میں یعنی ڈاکٹری کے شعبے میں یا طب کے شعبے میں اپنی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں اور کریئر بنانا چاہتے ہیں, ان کے لیے نیٹ کا امتحان لازمی ہے. صرف 12ویں کلاس کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس کے ساتھ ان کو نیٹ کوالیفائی کرنا ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں سے بچے اپنے طور پر کچھ ایسی کوششیں کر رہے ہیں, ان کے والدین کچھ ایسی کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ یہ بچہ جو ہے وہ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن بیدر میں جا کر وہاں پر ایڈمیشن لیا ہے. وہاں کی جو فیس ہے 2 سال کی, اس کی 11ویں 12ویں پلس ساتھ میں نیٹ کی تیاری کی, اس کی فیس کو انہوں نے کنسیشن کر دیا صرف اس کے حافظ ہونے کی وجہ سے. اب میں آپ سے یہ چاہتا ہوں, یہ مثال دینے کا مطلب یہ ابھی یہ بچہ یہاں پر آ کر کی پذیرائی انشاءاللہ کی جائے گی. آج خاص طور پہ یہاں آیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمارے بچوں کے یہ والدین یہ کوشش کریں, کیونکہ اکیلے اسکول کی کوشش کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں. اگر اسکول کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا والدین کا سپورٹ لینا پڑے گا, جبھی اسکول کامیاب ہوگا. ماضی میں جو اسکول کی صورتحال تھی, آج وہ اسکول کی
वो सूरत हाल अखलाकी तौर पर, ये मॉरल बैकग्राउंड पर वो रह नहीं गई है। और ये बड़े दुख की बात है। जब तक, मैं एक बार 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 कहता हूँ एक बात, कि जब तक उस्ताद का एहतराम नहीं करेगा कोई बच्चा, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। कितने तलबा हैं जो मुंहजोरी करते हैं अपने असातिज़ा से, उनको के सिखाने पर उनकी बात की नाफरमानी करते हैं, और ये कितने दुख की और अफसोस की बात है। मैं अपने स्कूल की चंद कामयाबियों का जिक्र भी यहाँ पर करना चाहता हूँ। स्कूल का एसएससी इम्तिहान का नतीजा 90% के ऊपर रहा। रिवायत के मुताबिक पिछले कई वर्षों से ये सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सिलसिला मुस्तक़बिल में भी हम जारी रखना चाहते हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा 10वीं जमात के बच्चे हैं, उनकी लापरवाही देखने के लायक है कि कितना दुख होता है कि इनको क्लास में पढ़ाने के लिए मेहनत की जा रही है, एक्स्ट्रा क्लास ली जा रही है, इनकी बुनियाद मजबूत करने के लिए, इनको पास करवाने के लिए हर तरीके से इनकी रहनुमाई की जा रही है। फिर भी ये तलबा जो है वो अदम दिलचस्पी का, ये इंडिफरेंस का शिकार है। कितने दुख और अफसोस की बात है। क्या इसमें हमारा कोई फायदा होने वाला है? क्या हमारे कोई सैलरीज पे इससे फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो एक सिलसिला है जो चलता रहता है। बच्चों को ये सोचना चाहिए कि मुस्तकबिल में जाके नुकसान इनको उठाना है। मैं कुछ कामयाबियों का जिक्र जरूर करूंगा जिसमें हमारे असातिज़ा की भी कामयाबियां हैं और साथ ही साथ हमारे तलबा की भी कामयाबियां हैं। एसएससी इम्तिहान के अलावा हमारे कुछ तलबा जो शहर और अतराफ में मुकाबले मुनक़िद होते रहते हैं बड़े बड़े इदारों के जरिए, स्कूलों के जरिए, उसमें शिरकत करते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल माजी में भी बेहतरीन कामयाबियां, बेहतरीन इनामात हासिल करता रहा। अभी जो लिस्ट मेरे पास में है उसके मुताबिक स्पोर्ट्स में भी इस साल हमारे तालिब इल्म ने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है। ये DSO यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुकाबले होते हैं जो कारपोरेशन के जरिए लिए जाते हैं। तो इसमें मोमिन मोहम्मद अम्मार वकार ने कैरम के मुकाबले में तालुका लेवल कैरम कंपटीशन में मुकाबला इनाम हासिल किया और ये आगे डिविजनल लेवल पर जाकर इसने खेला। इसका ये पहला इनाम इस तालिब इल्म को बहुत मुबारक और इसके रहनुमा उस्ताद हामिद हुए सर को भी मुबारक। साथ ही साथ हम स्कूल कमेटी, स्पोर्ट्स कमेटी जो कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की है, दानिश वधू सर और स्कूल कमेटी के चेयरमैन ध्रुव पटेल सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन बच्चों को उनकी खास रहनुमाई हासिल हुई थी, जिसकी वजह से उनका हौसला बढ़ा था। ऑल भिवंडी नागखानी कंपटीशन हुआ था, इसमें अंसारी मोहम्मद साजिद गुलाम मोहम्मद ने पहला इनाम हासिल किया था और ये हमारे रिजवान अली सर की काबिज थी। रहनुमाई बच्चे को बाइसिकल के इनाम से नवाजा गया है। मोमिन मोहम्मद और मोहम्मद इमरान इस तालिब इल्म ने भी नागखानी में छठा इनाम हासिल किया था। इस तालिब इल्म को रिजवान अली सर ने रहनुमाई की तरबियत की। बज़्म रेख्ता फाउंडेशन भिवंडी का एक इदारा है जिसके जरिए तलबा को जनरल नॉलेज में UPSC जैसे मुकाबला जाती इम्तिहानों के लिए तैयार किया जाता है। तो इस मुकाबले में जो बड़ा बैनुल मदारिस मुकाबला, इंटर स्कूल मुकाबला होता है उर्दू स्कूलों को, इस मुकाबले में इस साल हमारे स्कूल की टीम ने, इसमें 3 तलबा शामिल हैं, अंसारी अब्दुल बासित अब्दुल कदीर, अंसारी मीरान नूरुल हुदा और अंसारी अब्दुल हन्नान इम्तियाज है। इन 3 तलबा पर मुश्तमिल टीम ने बज़्म रेख्ता फाउंडेशन के मुकाबले में अव्वल इनाम इस साल हासिल किया था। और ये तैयारी जो थी वो यूनुस बागवान सर, साइमा मिस, नासिबा मिस, मजाज सर, उसके अलावा मसी बर्डी सर, शफी पटेल सर, इन सब असातिज़ा की निगरानी में हुई। मैं इस शानदार कामयाबी पर
इन तलबा को, इनके असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोकन टैलेंट फोरम एक इदारा है कोकन का, जो हर साल मुकाबला करवाता है, तालीमी मुकाबले मुनक़िद होते हैं। उसमें एक मुकाबला है वर्ड फॉर्मेशन का। इसमें हमारे एक छोटे 5वीं एक के नन्हे से तालिब इल्म ने अपने असातिज़ा की निगरानी में, जिसमें स्वाति मिस, शाहिदा मिस और नसीम मिस, इन्होंने काम किया था, तरबियत की थी बच्चे की। शेख अब्दुल्ला मोहम्मद सलीम, इस तालिब इल्म ने कॉन्सोलेशन प्राइज हासिल किया कई स्कूलों में, जो बड़ी बात है क्योंकि ये मुकाबला पूरे कोकन का होता है। इसके अलावा ऑल महाराष्ट्र तकरीरी मुकाबला जो रईस हाई स्कूल का मुकाबला है, और पूरे महाराष्ट्र के कई स्कूल इसमें शामिल होते हैं, शिरकत करते हैं। शेख हसनैन मोहम्मद उमर, इस तालिब इल्म ने हमारे स्कूल से इस मुकाबले में शिरकत की और हौसला अफजाई का चौथा इनाम इस तालिब इल्म को मिला था। मैं इसके जफर आलम सर और आसिफ सर को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, तालिब इल्म को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा मोमिन मोहम्मद रिजवान मुशीर, ये नातिया मुकाबले में शिरकत किया। इसके अलावा हरमाल तौसीफ तारिक, इसने बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मुकाबले में पहला कंसोलेशन प्राइज इसने हासिल किया, जो अल-उम्मत हाई स्कूल में मुनक़िद हुआ था। अब्दुल मुनाइम सर ने इसकी तलबा की, इस तालिब इल्म की जो है वो रहनुमाई की। और इन सब से हटकर टैलेंट हंट मुकाबला भी अल-उम्मत हाई स्कूल में मुनक़िद हुआ था, जिसमें अंसारी अब्दुल बासित अब्दुल कदीर, अंसारी मीरान नूरुल हुदा और अंसारी अब्दुल हन्नान इम्तियाज, इन 3 तलबा ने हमारे जो है असातिज़ा की रहनुमाई में, उनकी तरबियत में अच्छा मुज़ाहिरा किया और हौसला अफजाई का दूसरा इनाम इनको अल-उम्मत हाई स्कूल में हासिल हुआ। मैं इन तलबा और उनकी रहनुमाई करने वाले असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात का खुसूसी जिक्र करना चाहता हूँ कि कितनी भी असातिज़ा की कोशिशें हों, कि कितनी भी तलबा की कामयाबियाँ हों, उनके पीछे अगर कोई सच्ची कोशिश होती है तो वो असातिज़ा की होती है। अगर असातिज़ा मेहनत नहीं करेंगे तो कोई कामयाबी नहीं मिल सकती है। ये सब जो अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल हमारे असातिज़ा की, हमारे मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात की सही रहनुमाई का नतीजा है, जिसकी वजह से ये कामयाबियाँ हमको इस साल मिली हैं और हर साल मिलती आ रही हैं। इसी में हमारे चंद असातिज़ा हैं जिन्होंने तलबा को अच्छी तरबियत करने के साथ, उनको सिखाने के साथ साथ उनको बेहतरीन रहनुमाई फराहम करने के साथ साथ खुद भी इनामात हासिल किए। और इसमें हमारी एक टीचर है, जिसमें मोमिन सफीना साजिद अली, ये साइंस की टीचर हैं। इन्होंने खुद साइंस एग्जीबिशन जो भिवंडी तालुके की मुनक़िद होती है, इसमें अपनी तरफ से एक मॉडल पेश किया और टीचिंग एड के तौर पर जो बच्चों को सिखाने के लिए इस्तेमाल होता है तदरीस में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे भिवंडी तालुके का, जिसमें मराठी, अंग्रेजी, उर्दू और दीगर तमाम मीडियम के स्कूल शामिल होते हैं, उस मुकाबले में जो टीचर्स के माबैन होता है, टीचर्स के दरमियान होता है, तो टीचर्स के इस मुकाबले में जो टीचिंग एड का मुकाबला था, उन्हें सेकंड प्राइज से नवाजा गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हमारी एक टीचर है जो इस साल टोकन के आमदार हैं, जो महात्रे सर, उनकी एक तंजीम है शिव छत्रपति संगठन, शिक्षक संगठन। ये बहुत मशहूर तंजीम है और जिसकी सरबराही हमारे आमदार
महात्रे सर जो है वो करते हैं। इनके इदारे के जरिए हर साल असातिज़ा को, हेडमास्टर्स को इनामात से नवाजा जाता है। और इस साल हमारे स्कूल से गुणवंत शिक्षक पुरस्कार के नाम से ये जो टीचर अवार्ड है, ये टीचर अवार्ड हमारे स्कूल की एक मुअल्लिमा मोहतरमा जहां आरा असरार अहमद कुवारी को ये इनाम दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बड़ी कामयाबी है कि हमारे टीचर को भिवंडी तालुके में नहीं बल्कि हमारे थाने जिले में उनको रिकॉग्नाइज किया गया और उसकी तदरीसी खिदमत को सराहा गया। तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा हमारे लिए एक बड़ी खुशी का लम्हा इस साल और आया था कि हम भिवंडी का एक इदारा है एक्ट, तो इरफान बर्डी साहब हैं, कई वर्षों से इस इदारे पर 50 वर्षों से काम कर रहे हैं। वो भी असातिज़ा को, हेडमास्टर्स को अवार्ड, मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस साल उनके जलसे में हमारे बहुत काबिल उस्ताद और स्कूल के माविन मौल्लिम को, ये बड़ी बात है कि एक इंसान जिसकी उम्र 42-44 साल है, यानी 45 साल से कम है, और उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाए, ये बहुत बड़ी बात है। कि इस पर तालियां बढ़ती हैं शकील आसिम पटेल साहब को इस साल एक्ट की जानिब से ये बावकार अवार्ड दिया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो उनकी तदरीसी खिदमत, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव खिदमत के एतराफ़ में उनको इस अवार्ड से इनाम से नवाजा गया। तो ये असातिज़ा के चंद इनामात थे जिनका मैंने यहाँ पर जिक्र किया। मैं तलबा से फिर ये अपनी बात को ख़त्म करते हुए ज़रूर चाहूँगा कि बच्चों, अगर आपको अच्छा बनना है, कामयाब होना है ज़िंदगी में, तो अपने उस्ताद के सामने नजरें नीची करके उनके पैरों में अपनी नजरें रखें, ताकि आप जिंदगी में आसमान की बुलंदियों को छू। ये जो तलबा यहाँ पर बैठे हैं, ये कभी आपकी तरह यहाँ पर सामने बैठा करते थे माजी में। इनसे पूछे ये जब अभी आपके सामने कभी अपनी बात अभी थोड़ी देर बाद रखेंगे तो ये जिक्र जरूर करेंगे कि इनके असातिज़ा ने इनको भी डांटा होगा, इनको भी कभी फटकार लगाई होगी, इनको भी उसी तरीके से सिखाया होगा जैसे आज आप सीख रहे हैं। लेकिन अजीज तलबा, इन्होंने उन बातों की कीमत को, उसकी अहमियत को समझा था, सर आंखों पर रखा था, उनकी ताज़ीम की थी, और आज तक वो ताज़ीम करते आ रहे। जब वो इस बुलंदी पे पहुंचे कि आज इस सब से निकलकर स्टेज की बुलंदियों पर पहुंच गए। तो मेरा ये कहना है कि मुस्तकबिल में ये कारनामा, इससे पहले भी हमने कई वकील एक साथ, यहाँ के साबिक तलबा 8 वकील यहाँ पे एक साथ जमा किए, एक बार 4 इंजीनियर एक साथ यहाँ पर आए, एक बार 2 MD डॉक्टर, MBBS डॉक्टर यहाँ पर बिठाए गए कि ये हमारे दरमियान ऐसे ही बैठा करते थे, यही असातिज़ा उनको सिखाया करते थे। तो अजीज तलबा, अगर आप बढ़ना चाहते हो मेरे बच्चों, तो ये असातिज़ा की ताज़ीम करो, उनकी बातों को मजाक में मत लो, उनकी मजाक मत उड़ाओ, बल्कि उनका एहतराम करो। इंशाअल्लाह तरक्की जो है वो आपके कदम चूमेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कोई भी इंसान असातिज़ा की तकरीम के बगैर, ताज़ीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता, इस बात को गिरा में बांधना। और जो स्कूल डिसिप्लिन, ये स्कूल डिसिप्लिन के नाम पर मशहूर हुआ था, 1 दहाई कम में इसका डिसिप्लिन, आज अगर वो डिसिप्लिन कायम नहीं रहा है तो ये बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म के अफसोस की बात है। तालियां बजाने का वक्त नहीं है, बल्कि शर्म का मकाम है कि हमारे तलबा जो है वो असातिज़ा की तकरीम भूल गए हैं, इज्जत भूल गए हैं। मैं आपको बहुत पूरे एहसास के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, और वालिदैन से भी ये चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों की तरबियत पर खास तौर से ध्यान दें, क्योंकि स्कूल अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा कर रहा है, मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियां बराबर समझता है और पूरा सपोर्ट फराहम करता है, स्कूल कमेटी अपना सपोर्ट फराहम करती है, असातिज़ा अपनी रहनुमाई का काम पूरी जिम्मेदारी से अंजाम देते हैं। लेकिन अब काम बाकी है अगर किसी की तरफ, तो वो तलबा है और उनके वालिदैन। अगर ये घर पर अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को देंगे, अच्छी चीज़ें सीखने को देंगे, तो इंशाअल्लाह इसके बेहतर नताइज मुस्तक़बिल में भी मौजूद होंगे। मैं कुछ बेहतर उम्मीदों के साथ,
कुछ नए ख्वाबों के साथ कि जिनकी ताबीरें हमको मुस्तकबिल में मिलेंगी। आपको अलविदा कहता हूँ। आपने मेरी बात को तफसील से सुना और स्कूल के कुछ कारनामों को, कुछ कामयाबियों का जिक्र यहाँ पर सुना, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एनी सोसाइटी के मैनेजमेंट का, जिसमें हमारे सदर, एजाजी जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, नायब सदर, खादिम, तमाम जिम्मेदारान और स्कूल कमेटी के चेयरमैन सब शामिल हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें रहनुमाई, हमें सपोर्ट फराहम करते हैं। उनकी कामयाबी, उनके सपोर्ट के बगैर हम कोई काम इस अंदाज में और इतने कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं कर सकते, इसका मैं एतराफ़ करता हूँ। ये यकीनन उन्हीं का सपोर्ट है कि जिसमें हम आगे बढ़ते हैं पूरे हौसले के साथ। मैं आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और मेहमानों की बातों को आप पूरी तवज्जो से, खामोशी के साथ सुनेंगे, सबकी बातों को, क्योंकि ये बातें आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का एक हौसला, एक रास्ता बताएगी, हौसला देगी। और मुस्तकबिल में हम इसी उम्मीद के साथ में कि आप तरक्की करके अब देखेंगे मुस्तकबिल में कि कितने तलबा इसमें से, आज के मजमे में से, बच्चों के हुजूम में से कौन यहाँ पर बढ़कर मुस्तकबिल में हमको दिखाई देता है। मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, कितने बच्चे हैं जो मुस्तकबिल में एक अच्छी पोजीशन के साथ यहाँ पर इसी दौरान में हमारे साबिक कारपोरेटर, अभी उनके अहलिया जो है वो कारपोरेटर चुनकर आई है, मलिक मोमिन साहब, ये भी इसी स्कूल के साबिक तालिब इल्म हैं। ये बात खास तौर से आपको मैं बता रहा हूँ कि ये भी इसी स्कूल के तालिब इल्म हैं। तो आप किसी भी मैदान में आगे बढ़ सकते हैं, कोई मैदान आपके लिए मुकव्वल नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ, कितने बच्चे हैं जो ऐसे किसी पोजीशन में फिर से स्कूल में अगले 10 से 12 साल बाद वापस लौटना चाहते हैं। ये सिर्फ हाथ उठाने का काम नहीं है, जोश में हाथ उठाना एक अलग चीज है, पूरे हक़ के साथ, पूरे इस्तेक़लाल के साथ इरादा करके हाथ उठाना, ये अलग चीज है। ठीक है, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। मुझको यकीन है आप अपना काम कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। स्टेज पर मौजूद मेहमान, असातिज़ा इकराम और सलाम। अभी यहाँ स्टेज पर बैठे बैठे माजी की एक याद आता होगी। सन 2004 की बात है, कार्यक्रम जनवरी फरवरी का महीना रहा होगा। 10वीं जमात का सेंड ऑफ था और हम लोगों को टीचर बनने का मौका मिला था। उस दिन मुझे हेड मास्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इसी स्टेज से मुझे अपने साथियों से खिताब करने का मौका मिला था। वो दिन था और आज का दिन है। तकरीबन 22 साल बाद फिर मुझे इस स्टेज से खिताब करने का मौका मिला। मैं रईस शब्बीर सर का, रफीउद्दीन फौकी बॉयज हाई स्कूल के मैनेजमेंट का और असातिज़ा इकराम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, एक पैगाम है। जिंदगी में मौके बार बार आते हैं, बस शर्त ये है कि आप हिम्मत न हारें, लगातार मेहनत करते रहें और अपने ख्वाबों पर पूरा यकीन रखें। आज मुझे यहाँ ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं आपसे चंद हौसला अफजा बातें शेयर करूँ और आपको मोटिवेट करूँ। मैं सिर्फ चंद बातें ही कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, हमेशा दिल लगाकर पढ़ाई करें। पढ़ाई को बोझ ना समझें, बल्कि अपनी रोज़मर्रा की आदत बनाएं। रोज़ पढ़ना, बगैर उनके आगे बढ़ना, यही कामयाबी का सबसे बेहतरीन फार्मूला है। इसके अलावा जब भी मौका मिले, आप कोई ना कोई हुनर ज़रूर सीखें। छुट्टियों में जैसे कि ग्राफिक्स
ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, कोडिंग हो गई, या फिर खत्ताती सीखेंगे, और अपने इलाके में या फिर आपके पहचान में अगर कोई प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ बैठे, कुछ वक्त गुजारें, वो किस तरीके से काम करते हैं उनको कामों को समझें। इस तरीके से आपका जहन खुलेगा और आगे चलकर आपको ये भी समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है और आज किस लाइन पर आगे, किस लाइन में आगे जाना है। दूसरी बात, शब्बीर फारूकी सर ने उसके ऊपर बहुत जोर दिया कि अपने असातिज़ा का एहतराम करें, उनकी इज्जत करें। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर पढ़ाई में कोई डाउट हो या सवाल हो तो बिना झिझक अपने असातिज़ा इकराम से सवाल करें। यकीन मानिए असातिज़ा हमेशा चाहते हैं कि इनके तलबा आगे बढ़ें। आपका एक सवाल आपका पूरा मुस्तकबिल वाज़ेह कर सकता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आप सभी ने खरगोश और कछुए की कहानी तो जरूर सुनी होगी। उससे हमको क्या सीखने को मिलता है? मुस्तकिल मिजाजी का। कछुए ने क्या किया था? मुस्तकिल अपनी चलता रहा, ठीक है। तो आज के इस तेज रफ्तार जमाने में उस कहानी में एक नया सबक सीखने की जरूरत ये है कि हमको कछुए की मुस्तकिल मिजाजी के साथ साथ खरगोश की तेज रफ्तारी को भी पकड़ना है। अगर आप यानी मेहनत लगातार करते रहे, स्मार्ट मगर साथ ही स्मार्ट और तेज भी हो। अगर आप सुध पड़ गए तो दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। आखिर में मैं शब्बीर फारूकी सर, स्कूल के मैनेजमेंट, असातिज़ा इकराम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस इज्जत से नवाजा और तलबा से खिताब करने का मौका दिया। और जाते जाते मैं अपने उन साबिक असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी बदौलत आज मैं इस काबिल बन सका कि आपसे मुखातिब हो सकूँ। इन असातिज़ा में से कुछ दायरे पानी से कूच भी कर चुके हैं। इन असातिज़ा के नाम कुछ इस तरह हैं: मरहूम जुनैद सर, मरहूम जाहिद सर, मरहूम अफवान सर, मरहूम गुलाम रसूल सर, अख्तर कुबेरे सर, शबीना मिस, जमीला मिस, मिसबा मिस, बदरुन निसा मिस, मोइन सर, नज़ीर सर, निसार सर, तनवीर सर, हनीफ सर, आरिफ पंजाबी सर, जमीनुर रहमान सर, फैजान सर, दस्तगीर सर, इम्तियाज सर, परवेज सर, अकील सर मौजूद भी हैं, फ़हीम सर, इफ़्फ़त मिस, ज़ेबा मिस, सूबी मिस और आसिफ जामे सर। शुक्रिया। भैया डॉक्टर स्वामी, भैया इसको बोला था कि हॉस्पिटल के सामने और नहीं बजाना। ये बोलता है कि मैं ये बजाएगा, मैं ये बोलता है कि नहीं बजाएगा।